Hello everyone. Today we are discuss new chapter number 17 locomotion and movements. Start करते हैं. Movement is one of the significant features of living beings. Animals and plants exhibit a wide range of movements. Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. Movement of cilia, flagella, and tentacles are shown by many organisms. Human beings can move limbs, jaw, eyelids, tongue, etc. Some of the movement result in change of place or location. Such voluntary movements are called locomotion. Walking, running, climbing, flying, swimming are all some form of locomotory movements. Locomotory structure need to be different from those affecting other type of movements. For example, in paramecium, cilia helps in the movement of food through cytopharynx and in locomotion as well. Hydra can use its tentacle for capturing its prey and also using them for locomotion. We use limbs for change in body posture and locomotion as well. The above observation suggests the movements and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that also locomotions are movements, but all movements are not locomotion. Method of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of the situation. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climates, conditions, or the escape for enemies. Types of movement. Cells of the human body exhibit three main type of movements, namely amoeboid, ciliary, and muscular. Some specialized cells in our body, like macrophages and leukocytes in blood, exhibit amoeboid movement. It is affected by pseudopodia formed by the streaming of protoplasm. Cytoskeleton elements like microfilaments are also involved in amoeboid movement. Ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs, which are lined by ciliated epithelium. The coordinated movements of cilia in the trachea help us in removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along with the atmospheric air. Passage of ova through the female reproductive tract is also facilitated by the ciliary movements. Movements of our limbs, jaw, tongue, etc. require muscular movement. The contractile property of muscles are effectively used for locomotion and other movements by human beings and majority of multicellular organisms. Locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal, and neural system. In this chapter, you will learn about the types of muscles, their structure, mechanism of their contraction, and transport aspects of the skeletal system. Muscles. You have studied in chapter number 8 that the cilia and flagella are the outgrowth of cell membrane. Flagellar movements help in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and in locomotion of protozoans like Euglena. Muscles is a specialized tissue of mesodermal origin. About 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by muscles. They have special properties like excitability, contractibility, extensibility, and elasticity. Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance, and nature of regulation of their activities. Based on their location, three types of muscles are identified: skeletal muscles, visceral muscles, and cardiac muscles. सबसे पहले skeletal muscles देखेंगे. Skeletal muscles are closely associated with skeletal components of body. They have a stripped appearance under the microscope and hence are called striated muscles. As their activities are under the voluntary control of nervous system, they are known as voluntary muscles. They are primarily involved in locomotory action and change of body postures. Second है visceral muscles.
are located in the inner walls of hollow visceral organ of the body like the alimentary canal, reproductive tract, etc. They do not exhibit any striation and are smooth in appearance, hence they are called smooth muscles. Non-striated muscles. Their activities are not under the voluntary control of nervous system and are therefore known as involuntary muscles. They assist, for example, in the transportation of food through the digestive tract and gametes through the genital tract. As the name suggests, cardiac muscles are the muscles of heart. Many cardiac muscles cell assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle. Based on appearance, cardiac muscles are striated. They are involuntary in nature, and as the nervous system does not control their activities directly. Let us examine skeletal muscles in detail to understand the structure and mechanism of contraction. Each organism skeletal muscles in our body is made for number of muscles bundles and fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. Each muscle bundle contain a number of muscle fiber. Each muscle fiber is lined by plasma membrane called sarcolemma enclosing the sarcoplasm. Muscles fiber is a syncytium as the sarcoplasm contain many nuclei. The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscles fiber, is storehouse of calcium ions. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in sarcoplasm called myofilaments or myofibrils. Each myofibrils has alternate dark and light bands on it. A detailed study of myofibril has established that the stated appearance is due to distribution pattern of two important proteins, actin and myosin. The light band contain actin and is called I band or isotrope bands. Wherever the dark band contain A or anisotropic band contains myosin. See the diagram. This is fascicle muscles bundle and दिस इज स्मॉलेस्ट मसल फाइबर्स जो कि सराउंड रहता है सार्कोलेमा जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं मसल्स की और ये है अपनी ब्लड कैपिलरी. Both the protein actin and myosin are arranged as rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Actin filaments are thinner as compared to the myosin filaments, hence are commonly called thick and thin filaments respectively. In the center of each eye band is an elastic fiber called Z line which bisects it. The thin filaments are firmly attached to the Z line. The thick filament is the A band are also held together in the middle of this band by the thin fibrous membranes called M line. The A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibrils. The portion of the myofibrils between two successful Z lines is considered as the function unit of contraction and called a sarcomere. In a resting state, the edge of thin filaments on either side of thick filaments partially overlap the free ends of thick filaments, leaving the central part of the thick filaments. This central part of thick filament not overlapped by thin filaments is called H zone. जो थिक फिलामेंट्स है वो है अपना मायोसिन और जो थिन फिलामेंट्स है वो है अपनी एक्टिन. ये है थिक फिलामेंट्स, दिस इज़ अ मायोसिन और ये है थिन फिलामेंट, दिस इज़ अ एक्टिन जो कि जेड लाइन से कनेक्ट रहती है. इसके बीच में जो एच जोन है जहाँ ये ओवरलैप नहीं करती है एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर. और मायोसिन जहाँ एक्टिन जहाँ होती है वो आई बैंड बनाती है और जहाँ मायोसिन होती है वो ए बैंड होता है. ये जो पूरी यूनिट है इसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं. दो जेड लाइन के बीच का पोर्शन, दो जेड लाइन, ये एक जेड लाइन ये इसे, इनके बीच का जो पोर्शन है जहाँ एक्टिन है, मायोसिन है, एच जोन है, एम लाइन है, ये सभी सार्कोमेयर बनाती है.
स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 F फिलामेंट्स एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। ये दोनों F फिलामेंट्स जो होते हैं, ये डायग्राम में देखेंगे कि ये दोनों F फिलामेंट्स जो हैं वो हेलिकली बाउंड्स रहते हैं दोनों आपस में। ईच F फिलामेंट इज़ ए पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक G एक्टिन्स। जो F फिलामेंट है ये बहुत सारे ग्लोब्यूलर जो प्रोटीन्स है उससे मिलकर बना हुआ होते हैं। 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन्स। ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन ऑल्सो टू द F एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। जहाँ तक F एक्टिन है, ट्रोपोमायोसिन भी इनके साथ ही रहती है, इनके साथ साथ रन करती है। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। और एक प्रोटीन भी है जो ट्रोपोनिन, जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। In the resting state, a subunit of troponin makes the active binding sites for myosin on the actin filaments. ये जो ट्रोपोनिन है ये एक्टिन फिलामेंट्स को जुड़ने के लिए साइट्स प्रदान करती है। ईच मायोसिन जो कि थिक होती है, फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है। मैनी मोनोमोरिक प्रोटीन्स ऑल्सो कॉल्ड मीरोमायोसिन्स। मायोसिन फिलामेंट्स से बहुत सारी प्रोटीन्स के पॉलीमराइजेशन से बनती हैं। इसको जो मोनोमोरिक प्रोटीन्स है उसका नाम है मीरोमायोसिन। कंस्टिट्यूटिव 1 थिक फिलामेंट। Each myromycin has 2 important parts, a globular head with a short arm and a tail. मीरोमायोसिन में एक हेड होता है, ग्लोबुलर हेड होता है, एक आर्म है और टेल है। द फॉर्मर being called the heavy myromycin and the later the light myromycin. The heavy myromycin component, that is a head and short arm, project outward at regular distance and angular for angle of from each other from the surface of a polymerized myosin filaments and is known as cross arm. जो मीरोमायोसिन है वो 2 प्रकार के हैं, हैवी मीरोमायोसिन एंड लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन है उसके कंपोनेंट है अपना हेड और क्रॉस आर्म, हेड है और क्रॉस आर्म है, अपने हैवी मीरोमायोसिन बनाते हैं। और ये जो लाइट मीरोमायोसिन है उसमें अपनी आर्म और टेल आ जाएंगे। द ग्लोबुलर हेड इज़ एन एक्टिव एटीपेज। ये जो हेड है वो एटीपेज एंजाइम को एक्टिव करता है एज बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। एटीपीज एंजाइम को एक्टिवेट करता है जिससे एटीपी जो होती हैं वो बाइंड कर सकें एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन को एक्टिवेट करने के लिए। आगे देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिंगल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। A motor neuron along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit. The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fibers is called the neuromuscular junction or motor end plate. A neural signal reaching the junction release a neurotransmitter acetylcholine which generate an action potential in the sarcolemma. This is spread through the muscle fibers and can cause the release of calcium ions into the sarcoplasm. Increase in calcium levels leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on actin filaments and thereby remove the making of active sites of 4 myosins. Utilize the energy from ATP hydrolysis. The myosin head now binds to the exposed active sites on actin to form a cross bridge. सबसे पहले क्या हुआ, न्यूरल सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट के पास, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए एसिटाइलकोलिन, जिससे एक्शन पोटेंशियल जो है वो सार्कोलेमा में जनरेट हुआ और ये जो स्प्रेड्स हो रहा है अपनी मसल्स फाइबर्स में, जिससे कैल्शियम आयंस रिलीज़ हुए सार्कोप्लाज्म में, जिससे कैल्शियम का लेवल जो होता है वो बढ़ गया, इससे बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम पे सब ट्रोपोनिन से जो कैल्शियम की बाइंडिंग है वो हुई। जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, ट्रोपोनिन की जो साइड्स है वो खुल जाती है मायोसिन के जुड़ने के लिए, जिससे एक्टिव और मायोसिन जो है एक्टिन और मायोसिन जो है वो आपस में जुड़ते हैं और एटीपी का यूटिलाइज भी होता है। ये है एक्टिन फिलामेंट्स एंड ये है मायोसिन फिलामेंट्स। एटीपी
की हेल्प से एक एडीपी बनता है और फॉस्फेटाइन अलग होता है। फिर क्या हुआ, मायोसिन जो होता है, मायोसिन का हेड होता है वो एक्टिन से जाके बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन वाली साइड से, क्रॉस ब्रिज बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। फिर उसके बाद स्लाइडिंग होता है मसल्स का एक्टिन का मायोसिन के ऊपर। फिर ब्रेकिंग, फिर से ब्रेकिंग हो जाता है एटीपी का। ये साइकिल्स जो है वो चलता रहता है। आगे देखते हैं, दिस पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ ए वेंट। The Z line attached to these actins are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere. That is contraction. It is clear from the above steps that during shortening of the muscles, contraction that I bands get reduced. Wherever the A bands retain the length, the myosin releases the ADP and P phosphate, goes back to its relaxed state. A new ATP binds and cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation. And the breakage are repeated, causing further sliding. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments. This cause of returning of Z line back to their original positions, that is relaxation. The reaction time of the fibers can vary different muscles. Repeated activation of muscles can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. Muscles contain a red colored oxygen storing pigment called myoglobin. पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। स्लाइडिंग फिलामेंटस थ्योरी है ये, देखेंगे। ये रिलैक्स स्टेट है। रिलैक्स स्टेट में जेड लाइन प्रॉपर है, सार्कोमियर बना रहा है ये। इसमें अपना मायोसिन और एक्टिन अलग अलग है, और ये अपना एच जोन है। आई बैंड जो कि जिसमें अपनी एक्टिन फिलामेंट ही रहता है, और मायोसिन फिलामेंट जो होता है इसमें हाफ एक्टिन रहता है और मायोसिन रहती है, ए बैंड जो रहता है। रिलैक्स स्टेट है सभी। अब जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जब आते हैं तो जो एक्टिन फिलामेंट्स है वो अंदर की तरफ खींचते हैं, जिससे एच जोन जो है वो कम होता चला जाता है। एच जोन कम होता चला जाता है, और इसमें भी एच जोन कम हो रहा है। फिर जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो एच जोन बीच में देखो गायब हो गया है, एम लाइन भी गायब हो गई है, और एक्टिन और मायोसिन प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, और जिससे जेड लाइन जो है वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सार्कोमियर जो है वो आपस में कम होता जा रहा है उसका साइज़। अब हम आगे देखते हैं। मायोग्लोबिन जो होती है वो कंटेन इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव अ रेडिश अपीयरेंस। सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर्स। The muscles also contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them from ATP production. These muscles therefore can also be called aerobic muscles. On the other hand, some of the muscles possess very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish. These are the white fibers. Number of mitochondria are also few in them, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high. They depended on anaerobic process of energy. देखेंगे स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड अ फ्यू कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का और कुछ कार्टिलेज का। दिस सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट्स शोन बाय द बॉडी। जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स हो करती है उनका सिग्निफिकेंट रोल होता है स्केलेटल सिस्टम में। इमेजिन च्यूइंग फूड without jaw bones and walking around without the limb bones. Bone and cartilage are specialized connective tissue. The former has a very hard matrix due to calcium salts in it, and the latter has slightly pliable matrix due to chondroitin salts. In human beings, this system is made up of two
106 bone and few cartilage. It is grouped into two principal division, the axial and the appendicular skeletal system. दो डिवीज़न करते हैं हम, ग्रुप में बांट देते हैं इसको, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन देखेंगे। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो कंप्राइजेज होता है 18 बोन्स डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सियल स्केलेटन। द स्कल इज़ कम्पोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। स्कल्स जो होता है वो दो सेट की बोन्स में कंपोज होता है। पहला है जो क्रेनियल बोन एंड फेशियल। क्रेनियल एंड फेशियल दो बोन्स में कंपोज्ड होता है। दैट टोटल्स टू 22 बोन्स। टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसमें से 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं और 14 जो होती हैं वो फेशियल बोन्स होती हैं। क्रेनियल बोन दे फॉर्म द हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, क्रेनियम फॉर्म द ब्रेन की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। द फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 स्केलेटल एलिमेंट्स विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। और जो फेशियल रीजन जो होता है वो मेडअप होता है 40 स्केलेटल एलिमेंट से, जो फ्रंट वाला पार्ट बनाता है स्कल का। ए सिंगल यू शेप्ड बोन कॉल्ड हाइड इज प्रेजेंटेड एट द बेस ऑफ द वक्कल कैविटी एंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। और ये जो यू शेप की बोन होती है हाइड बोन, वो भी एक स्कल में इंक्लूडेड है, जो कि वक्कल कैविटी के नीचे प्रेजेंट रहती है, वेस में प्रेजेंट रहती है। ईच मिडल ईयर contains 3 tiny bones, malleus, incus and steps, collectively called ear ossicles। हमारे ईयर्स में 3 बोन्स रहती हैं, टिनी बोन्स छोटी छोटी, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, जिसको हम कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन्स टू द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 कंडाइल्स। अब हम पहले स्कल जो बोन है उसका डायग्राम देखेंगे। जो 8 क्रेनियल बोन्स हैं वो देखेंगे। फ्रंटल बोन, और जो पैराइटल बोन होती हैं वो 2 होती हैं, टेम्पोरल बोन भी 2 होती हैं, और एक होती है ऑक्सीपिटल बोन एंड ऑक्सीपिटल कंडाइल। स्फिनोइड बोन है ये। दिस इज एथमोइड बोन एंड दिस इज लेक्राइमल बोन, नेजल बोन, जाइगोटिक बोन, मैग्जिला, मैंडिबल, हाई बोन। ये सारी बोन्स रहती हैं हमारे स्कल्स में। आगे देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। आवर वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म बाय 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टिब्री एंड इज डॉर्सली प्लेस्ड। It extends from the base of the skull and constitute the main framework of the trunk. डॉर्शली होती हैं, 26 इन नंबर्स होती हैं, और एक्सटेंड रहती हैं स्कल से लेके मेन जो फ्रेमवर्क होता है ट्रंक का वहाँ तक। ईच वर्टिब्रा हैज़ ए सेंट्रल हॉलो पोर्शन, जिसको हम न्यूरल कैनाल बोलते हैं, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। हर एक वर्टिब्रा के बीच में सेंट्रल कैनाल होती है जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। फर्स्ट वर्टिब्री इज़ अ एटलस एंड इज़ आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल। सबसे पहली जो वर्टिब्री है उसका नाम है एटलस, जो कि ऑक्सीपिटल कंडाइल, जो ऑक्सीपिटल बोन है वह उससे आर्टिकुलेट्स रहती है, जुड़ी हुई रहती है ऑक्सीपिटल कंडाइल से। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ ए डिफ्रेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल। 7 सर्वाइकल्स होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर एंड 1 सैक्रल, जो कि फ्यूज हुई जाती है, और कॉकिजियल होती है 1, जो भी फ्यूज हुई रहती है। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रल, 1 कॉक्सिजियल। रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल। The number of cervical vertebrae are seen in almost all mammals, including human beings. The vertebrae column protect the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं ये कॉलम। सपोर्ट द हेड एंड सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द रिब्स। अपने हेड जो होता है उसको सपोर्ट करते हैं और रिब्स के अटैचमेंट के लिए पॉइंट प्रदान करते हैं।
and musculature of the back. Sternum is a flat worm on the ventral midline of thorax. ये जो sternum है ये ventrally होती है, midline होती है thorax, midline में thorax में middle में होती है. There are 12 pair of ribs. 12 pair ribs होती हैं. Each ribs is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के और हर एक रिब जो होती है थिन होती है, फ्लैट होती है, डॉर्सली कनेक्टेड रहती है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली कनेक्टेड रहती है स्टर्नम से. It has two articulating surface on its dorsal and is hence called bicephalic. और डॉर्सली साइड जो वर्टिब्री से जुड़ती है तो इसकी जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती हैं वो दो होती हैं, इसलिए हम इसको रिब्स को बाइसेफेलिक्स भी बोलते हैं. फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स. जो फर्स्ट 7 पेयर्स होती हैं रिब्स को हम उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं. डॉर्सली दे आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू द स्टर्नम. इसलिए बोलते हैं क्योंकि डॉर्सली ये कनेक्ट रहती हैं वर्टिब्री से और एंड वेंट्रली कनेक्ट रहती हैं थोरेसिक वो स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ द हेलाइन कार्टिलेज की मदद से, और ये कनेक्ट रहती हैं हेलाइन कार्टिलेज की हेल्प से. द 8th, 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट जॉइन द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हेलाइन कार्टिलेज. अब जो 8th, 9th और 10th नंबर की वर्टिब्री है वो हमारी स्टर्नम से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है. 7th नंबर की जो वर्टिब्री है उससे हेलाइन कार्टिलेज की हेल्प से कनेक्टेड है. ये है 7th नंबर की वर्टिब्री, उससे हेलाइन कार्टिलेज की मदद से ये तीनों वर्टिब्री जो हैं वो कनेक्टेड हैं. दिस इज 7th वर्टिब्री, नहीं सॉरी, दिस इज 7th वर्टिब्री और 8th, 9th एंड 10th रिब इज कनेक्टेड with the हेलाइन कार्टिलेज. These are called vertebrochondral ribs. इसको हम बोलते हैं जो 8th, 9th और 10th रिब्स को हम बोलते हैं vertebrochondral ribs. Last two pairs 11th and 12th of ribs are not connected ventrally and are therefore called floating ribs. और जो 11 और 12th नंबर की जो वर्टिब्री है वो हमारी स्टर्नम से या फिर किसी भी वेंट्रली किसी से भी कनेक्ट नहीं होती, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं. Thoracic vertebra ribs and sternum together to form rib cage. Thoracic vertebrae जितनी भी हैं और sternum, ribs ये सभी मिला के rib cage बनाती हैं. The bones of the limbs along with their girdles constitute the appendicular skeleton. अब ये जो सारे थे हमारे जैसे कि स्कल, वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स ये सारे एक्सियल स्केलेटन थे. अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात करेंगे. अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो देखेंगे. ईच लिम्ब जो इज़ मेड अप ऑफ 30 बोन्स. द बोन्स ऑफ द हैंड 4 लिम्स आर. हमारा जो हर एक लिम्स जो है उसमें 30 बोन्स होती हैं. अब हम हैंड्स की बात करेंगे तो उसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, रिस्ट बोन्स आ जाती हैं, 8 होती हैं नंबर्स में. मेटाकार्पल्स इसमें पाम की बोन आती हैं, 5 होती हैं नंबर में. एंड फैलेंजेस डिजिट्स होती हैं 14 इन नंबर्स. ये देखेंगे हैंड्स में सबसे पहले ह्यूमरस, फिर रेडियस, अल्ना एंड कार्पल्स जो कि 8 होती हैं नंबर में. फिर है मेटाकार्पल्स जो कि 5 होती हैं नंबर में. और फैलेंजेस डिजिट्स जो होती हैं वो 14 होती हैं टोटल. अब देखेंगे फीमर्स. लिम्स में जो है वो होती है हमारी फीमर, थाई बोन द लॉन्गेस्ट बोन होती है, टिबिया एंड फिबुला. फीमर जो है थाई में होती है, लॉन्गेस्ट बोन है, फिर टिबिया एंड फिबुला. टार्सल्स जो कि एंकल बोन होती हैं 7 होती हैं नंबर में. टार्सल्स एंकल बोन है जो कि 7 इन नंबर से हैं. मेटाटार्सल्स जो है वो 5 इन नंबर्स हैं. एंड फैलेंजेस भी ये 14 हैं डिजिट्स में. द बोन्स ऑफ द लेग्स आ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर द नी वेंट्रली.
एक कप से बोन है पटेला जो कि नी को वेंट्रली कवर किए हुए हैं नी कैप की तरह। अब आता है पेक्टोरल एंड pelvic girdle bone help in the articulation of the upper and the lower limbs। पेक्टोरल बोन जो और जो पेल्विक गर्डल है वो हेल्प करती हैं अपने लिम्स के आर्टिकुलेशन में, रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। ईच गर्डल इज formed two half. Each half of pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula। एक जो अब पेक्टोरल गर्डल जो है उसमें आ जाते हैं हमारी क्लेविकल बोन और ये जो पीछे है डॉर्सली होती है स्कैपुला। स्कैपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकेंड एंड द सेवेंथ रिब्स। ये सेकेंड रिब से सेवेंथ रिब के बीच में होती है स्कैपुला और डॉर्सली रहती है। The dorsal flat triangular bone scapula seventh is the dorsal flat triangular body of scapula has slightly elevated ridge called the spine which project as a flat expand process called the acromion process। स्कैपुला जो होती है वो स्लाइटली एलिवेटेड होती है ऊपर इधर और एक स्पाइन की तरह स्पाइन प्रोसेस बनाती है, इसको हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। इधर एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है और क्लेविकल जो है उससे आर्टिकुलेट रहती है। ये जो पीछे की तरफ दिखती है जहाँ क्लेविकल का आर्टिकुलेशन है वो एक्रोमियन प्रोसेस है। बिलो द एक्रोमियन इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनॉइड कैविटी। एक्रोमियन के नीचे एक ग्लिनॉइड कैविटी है स्कैपुला के अंदर ही जहाँ पे हमारा ह्यूमरस का हेड का आर्टिकुलेशन होता है और सोल्जर जॉइंट का फॉर्म होता है। ये जो है ये सोल्जर जॉइंट का फॉर्म हो रहा है जहाँ से ये जो ह्यूमरस है और ये जो स्कैपुला ग्लिनॉइड कैविटी है उनके बीच में जॉइंट बन रहा है। ईच क्लेविकल इज़ लॉन्ग slender bone with two curvature। This bone is commonly called collar bone और beauty bone। क्लेविकल जो होती है लॉन्ग होती है, स्लेंडर बोन होती है और इसके दो कर्वेचर होते हैं और इसको हम कोलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। पेल्विक गर्डल जो है कंसिस्ट ऑफ टू कोक्सल बोन्स। पेल्विक गर्डल में दो कोक्सल बोन होते हैं। ईच कोक्सल बोन इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। हर एक कोक्सल बोन जो होता है वो तीन बोन के फ्यूजन से बनता है, इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन of the above bones is cavity called acetabulum to which the thigh bone articulates। अब यहाँ जो कैविटी बन रही है एसिटाबुलम कैविटी जहाँ पर जो फीमर है उसका आर्टिकुलेशन हो रहा है। द टू हाफ ऑफ द पेल्विस गर्डल मीट वर्टिकली टू फॉर्म द प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेनिंग। और जहाँ यहाँ इधर साइड एक और पेल्विक इधर पेल्विक बोन होगी जो आपस में पेल्विक सिम्फाइसिस की हेल्प से जुड़ी रहती हैं जो एक फाइब्रस कार्टिलेज है। Joints or disorders of skeletal muscle system। Joints are essential for all types of movements involving the bony parts of the body. Locomotory movements are no exception। This joints are point of contact between bones और between bones and cartilage। joints जो होते हैं वो दो bones के बीच का contact या फिर bones और cartilage के बीच का contact होता है। Force generated by the muscles is used to carry out movements through joints। Where the joints act as a fulcrum, the mobility at these joints vary depending of different factors। Joints have been classified into three major structural forms, namely fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints। सबसे पहले fibrous joints देखेंगे। फाइब्रस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज सोन बाय द फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूज टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सूचर टू फॉर्म द क्रेनियम। एग्जाम्पल है स्कल बोन्स जो कि आपस में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से
जुड़ी हुई रहती हैं उनको हम सूचर्स बोलते हैं, और ये क्रेनियम बनाती हैं। नेक्स्ट जो जॉइंट है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जॉइंट्स, दो बोन्स जो है ना वो आपस में कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। द जॉइंट्स बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ द पैटर्न एंड इज परमिट लिमिटेड मूवमेंट्स। दो वर्टिब्री जो होती हैं वो आपस में कार्टिलेज की हेल्प से ही जुड़ी हुई होती हैं, और रिब्स जो है वो वर्टिब्री से भी कार्टिलेज की हेल्प से ही जुड़ी हुई होती है। लास्ट जो जॉइंट है और इसमें जो मूवमेंट होता है वो स्लाइड लिमिटेड मूवमेंट्स होता है। नेक्स्ट है और लास्ट है साइनोबियल जॉइंट्स। साइनोबियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ a fluid filled synovial cavity between the articulating surface of the two bones। दो बोन्स के बीच में जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वहाँ साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसाइडरेबल मूवमेंट। दीज जॉइंट्स हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट्स। ये जो जॉइंट्स होते हैं वो लोकोमोशंस और अदर जो मूवमेंट्स हैं उनमें भी हेल्प करते हैं। ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं, जैसे वॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। जो ह्यूमरस और पेक्टोरल के गर्डल के बीच में जो जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट, वहाँ वॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट जो कि नी जॉइंट है। नी जॉइंट का नाम को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। पाइवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो होता है कार्पल्स के बीच में, और सैडल जॉइंट होता है कार्पल्स एंड मेटाकार्पल और थंब के बीच में। ये सारे एग्जाम्पल है साइनोबियल जॉइंट्स के। लास्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करती है। दिस इज़ अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। इससे फटीग होगी, वीकनेस होगी और स्केलेटल मसल्स की पैरालिसिस देखने को मिलती है। अगला है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें जो स्केलेटल मसल्स है उनका डिजनरेशन होने लगता है। नेक्स्ट है टिटेनी। टिटेनी रैपिड स्पाज्म विथ कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन बॉडी फ्लूइड। टिटेनी जो है उसमें मसल्स का स्पाज्म देखने को मिलता है क्योंकि कैल्शियम आयन जो होते हैं वो बॉडी फ्लूइड्स में कम होने लगते हैं, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो सही से नहीं हो पाता। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। इन्फ्लामेशंस ऑफ जॉइंट्स। अर्थराइटिस में जो होता है वो जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होता है। अगला है ऑस्टियोपोरोसिस। इट इज़ अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज के चांस ऑफ फ्रैक्चर। यह एक एज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है जिसमें जो बोन का मास है वो डिक्रीज होने लगता है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज़ ए कॉमन कॉज। ये ईस्ट्रोजन का जो लेवल डिक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से भी हमको ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलती है। लास्ट है गॉट। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। गॉट जो है वो भी इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स के बीच में एक्यूमुलेशन होने लगता है उनका। थैंक यू।